start our new chapter, chapter 2 of history portion, new kings and kingdom. Please keep your book in front of you children, otherwise you not understood, and hold your pencil in your hand. Clear children? So let's start our new chapter, chapter 2, new kings and kingdom. Now see the first para children. The period between 700 to 1200 CE witnessed the rise of many regional kingdoms in North and South India. These regional kingdoms were in constant warfare with one another to gain control over neighboring territories and conquer strategic region. So, what we are talking about, which period children? 700 to 1200 CE. जितने भी राजा आए, so many rulers are here. That means we are talking about here in this period so many rulers. So what they are doing? They are doing warfare. Warfare means what? They are doing conflict with each other. लड़ाइयाँ करते थे to capturing their territories. टेरिटरीज मतलब क्या होता है? ज़मीनों को, उनके किंगडम्स को हथियाने के लिए they are continuously doing warfare, what like that, or talwarbazi like that. Okay, they are doing continuously warfare on those period to capture their territories. Clear? So let's see the next first topic here, rise of new kingdom. Rise of new kingdom. Rise of new kingdom. So what it is given here children, it is also very interesting topic. It is very interesting topic children. जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि 700 to 1200 CE में what happened here in the so many rulers are there, but they are conflict with each other to capturing their territories. Okay, so what is given in the next topic here, rise of new kingdom. Of these kingdoms that emerged, the Pratiharas in western India, the Palas of Bengal and Rashtrakutas of Deccan were the most powerful. Here rise of new kingdom, तीन लोगों की बात हुई है यहाँ पर. Which one? First is Pratiharas, second is Palas and another is Rashtrakutas. Okay, of the Deccan the most powerful, जो सबसे ज़्यादा powerful थे राष्ट्रकूटा थे. Okay, so let's talk about our first point which is given here in this topic, Pratiharas. Pratiharas. Clear? Pratiharas. ये अब कौन से राजा थे? इन्होंने क्या किया? चलो देखते हैं. The Pratiharas are also known as Gujara Pratiharas. Okay, underline it. इसको इस नाम से भी जाना जाता था. Dominated Western India and the Upper Gangetic Valley. They had established their kingdom in Marwar. Okay, where they established their kingdom children? मारवाड़ में उन्होंने अपना kingdom establish किया था. They become prominent during the reign of Nagabhat I. He conquered Malwa, Bharuch. He defeated the Arabs who wanted to capture Malwa. It was under Mihir Bhoj that the Pratiharas became very powerful. Mir Bhoj expanded the Pratihara territory by conquering Punjab, Awadh, Malwa and Gujarat. So let's see. I explain you each and every line slowly. Okay, what it is given here. So see, the Pratiharas also known as Gujarat Pratiharas. Underline it. फिर क्या बताया? Dominated Western India and Upper Gangetic Valley. इन्होंने किसको डोमिनेट किया था? किसको जीता था? Yes, that is Western India and Gangetic Valley, Upper Gangetic Valley. Okay, they had established their kingdom in Marwar. इनका kingdom कहाँ establish हुआ था? कहाँ रहते थे? कहाँ राज करते थे? In Marwar. Okay, they become prominent during the reign of Nagabhat. बहुत ही प्रॉम्प्ट रूलर्स थे. कब? जब किसका रीजन, किसका रूलिंग चल रहा था? नागाभट्ट वन का. क्लियर? अब नागाभट्ट वन कितने पीरियड के लिए थे? 750 to 780 तक. ही कॉन्कर्ड मालवा.
कौन कॉन्कर्ड मालवा? नागा भट्ट। ओके, नागा भट्ट ने मालवा पर भी कब्जा किया। एंड बारूच ऑल्सो, ही डिफीटेड अरब्स, उन्होंने अरब्स पर भी कब्जा किया। हु वांटेड टू कैप्चर मालवा, जो मालवा पर कब्जा करना चाहते थे, अरब्स के जो रूलर्स थे जो मालवा पर कब्जा करना चाहते थे, उनको भी उन्होंने डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया। क्लियर? सो इट वॉज अंडर मिहिर भोज दैट द प्रतिहारास बिकम वेरी पावरफुल। जब राजा, कौन राजा थे? मिहिर भोज। जब राजा मिहिर भोज थे, है ना, दैट द प्रतिहारास बिकम वेरी पावरफुल, तो जो प्रतिहारा का जो ग्रुप था वो बहुत पावरफुल बन गया था। क्लियर? मिहिर भोज एक्सपांडेड द प्रतिहारास टेरिटरीज, प्रतिहारास की टेरिटरी को वो एक्सपांड करना चाहते थे, मतलब और बढ़ाना चाहते थे। बाय कॉन्करिंग पंजाब, पंजाब को कॉन्कर करके, अवध को कॉन्कर करके, मालवा एंड गुजरात ऑल्सो। ही मेड कनौज हिज कैपिटल, उन्होंने कनौज को अपना कैपिटल बनाया था। ही कौन थे? ये मीर भोज। ओके, मिहिर भोज। ओके, अंडरलाइन इट। ये इतने सारे एरिया को कैप्चर करके अपनी टेरिटरी को वास्ट, मतलब बढ़ाना चाहते थे, एक्सपांड करना चाहते थे। हिज कैपिटल, द प्रतिहारास डायनेस्टी डिक्लाइन एट द एंड ऑफ 10th century। अब इस डायनेस्टी का डिक्लाइन कब हुआ? हर कोई तो हमेशा के लिए राज नहीं करता चिल्ड्रन, डिक्लाइन तो होता ही है, कभी कभी रूलिंग भी खत्म होती है, किंग भी खत्म होता है और किंगडम भी खत्म हो जाता है। ओके, तो प्रतिहारास का डिक्लाइनेशन मतलब वो खत्म कब हुआ? बाय द एंड ऑफ 10th century। 10th century के एंडिंग में आते आते प्रतिहारास का किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया। क्लियर चिल्ड्रन? तो मैंने इस पैरा में क्या बताया? प्रतिहारास को क्या बोला जाता है? प्रतिहारास बोला जाता है। इन्होंने अपना किंगडम कहाँ इस्टेब्लिश किया था? मारवाड़ में, है ना। अरब्स को भी उन्होंने हराया, क्यों? क्योंकि वो मारवाड़ पर कब्जा करना चाहते थे। फिर मिहिर भोज बने रूलर, है ना, वो अपने किंगडम को वास्ट करना चाहते थे। तो सो मेनी प्लेसेस दे कैप्चर्ड मालवास एंड अवध एंड ऑल। ओके, एंड गुजरात ऑल्सो। और उन्होंने कैपिटल अपने एरिया को क्या, कौन सी सिटी को बनाया था चिल्ड्रन? कनौज। द प्रतिहारास डायनेस्टी डिक्लाइन, और फिर डिक्लाइन कब हुआ? यस, 10th century, एट द एंड ऑफ द 10th century। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया चिल्ड्रन? गुजरात प्रतिहारास, ओके, डिफीट अरब्स रूलर्स। फिर मिहिर व्हाट द नेम हियर? मिहिर भोज, है ना, रूलर का नाम था मिहिर भोज। ही वांटेड टू इंक्रीज देयर किंगडम एंड देन द डिक्लाइनेशन ऑफ द किंगडम एट द एंड ऑफ द 10th century। इतना पार्ट समझ में आया चिल्ड्रन आपको? ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीरियड रीड आउट द पैरा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पालास। ओके, प्रतिहारास के बारे में समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम पालास पर। ओके, इनके बारे में भी देख लेते हैं। व्हाट इट इज गिवन हियर? द एरिया दैट वाज अंडर पाला रूलर इंक्लूड द स्टेट ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ ओडिशा। ओके, ये पार्ट्स पर किसका राज चल रहा था? पालास। ओके, एंड नेपाल ऑल्सो। द पाला रूलर्स followed the policy of territorial expansion and were also in conflict with प्रतिहारास and राष्ट्रकूटा। अब ये किससे कॉन्फ्लिक्ट करते थे? प्रतिहारास से भी और राष्ट्रकूटा से भी। कौन? पालास। ओके, हम पालास की बात कर रहे हैं। प्रतिहारास जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनसे भी ये कॉन्फ्लिक्ट करते थे, उनसे भी लड़ाइयाँ करते थे। एंड जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रकूटास, ओके, उनसे भी ये कॉन्फ्लिक्ट करते थे। अब मैंने बताया था कि पहले के किंगडम, पहले के राजा क्या करते थे? लड़ाइयाँ करते थे टू कैप्चर देयर किंगडम्स, है ना, वही काम किया करते थे कि ये दोनों तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता था। सो द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी इंक्लूड देवपाल एंड महीपाल वन। ओके, अब सबसे प्रोमिनेंट रूलर, हु वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी? The name of the ruler is Devpal and Mahipal. Underline it children. Up to which period? 1082 and 1124 CE was the largest great ruler of Pala dynasty. These two rulers are the greatest ruler of the Pala's dynasty. After Rampal and
After Rampal, the Pala kingdom slowly disintegrated in the 12th century due to खलजी's invention. 12th century में इसका डिक्लाइनेशन हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी एंटर हुए. इन्वेंशन जब उनका एंटर हुआ, ओके, उन्होंने अटैक किया और ये हारते चले गए. लाइक दिस, खलजीज पढ़ा है ना पिक्चर में, लाइक दैट. अंडरस्टूड चिल्ड्रन. पाला डायनेस्टी के बारे में मैंने क्या बताया? दे वेर डूइंग कॉन्फ्लिक्ट, दे आर doing fighting, that means they are doing wars about from which of the rulers, Pratihara's rulers and the Rashtrakutas rulers, okay. And two main prominent ruler of these Pala's dynasty are, underline it, that is Devpal and Mahipal, okay, underline it. And after the Rampal, the dynasty, that means the Pala kingdom slowly declined at the end of the 10th century when the Khiljis enter in our India. Now, our next topic is Rashtrakutas. Rashtrakutas. Pratihara is clear, no children? एक बार पैरा रीड कर लोगे, you can understand. Pala also you can, है ना, ट्रू प्रोमिनेंट रूलर के बारे में बताया है. अब राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ेंगे चिल्ड्रन. व्हाट इट इज गिवन हियर इन राष्ट्रकूटास, ओके. सो लेट्स सी राष्ट्रकूटास. द राष्ट्रकूटा वर chieftain in central India. Chieftains means what? मुखिया. शुरुआत में राष्ट्रकूटास कौन थे? मुखिया. जैसे मुखिया बोलते हैं ना, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड उनको दिया जाता है ना, और वो पार्ट ऑफ लैंड में रहते हैं मुखिया बन के, हेडमैन बन के. एंड दे कैन ट्रेन द पीपल हु आर लिविंग ऑन दैट एरिया. उनको ट्रेन करते हैं, सोल्जर्स बनाते हैं, है ना. उनको ट्रेन करके राजा के लिए सोल्जर्स बनाते हैं ताकि कभी अब वॉर हो तो ये सारे रूलर क्या करेंगे? हमारे राजा के साथ मिलकर लड़ाइयाँ करेंगे. लाइक दैट मुखिया थे. राष्ट्रकूटास कौन थे? दे आर द चीफटेन, दैट मीन्स मुखिया. इन सेंट्रल इंडिया में दे लेटर रोज टू द पोजिशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी. फिर बाद में उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया. अब मैम ये तो मुखिया थे, इंडिपेंडेंट किंगडम कैसे बना लिया? सी चिल्ड्रन, राजाओं के पास बहुत ज़मीनें होती थी, क्लियर. अब वो सारी ज़मीनों का देख तो नहीं कर सकते थे, ध्यान तो नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने क्या किया? चीफटेन्स बनाए और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड हर एक चीफटन को दे दिया, क्लियर. अब वो चीफटन वहाँ टैक्स कलेक्ट करते, वहाँ के पीपल को ट्रेन करते, ओके, और ट्रेन करके वॉर के लिए तैयार करते. बदले में उसको टैक्स मिलता, वो टैक्स में वो अपनी सैलरी निकालता था. टैक्स समझ में आता है ना? बदले में वो महीनों में एक बार सबसे पैसे लेता और वो पैसों में जो सैलरी उसकी निकलती वो दे रखता, और बाकी जो ज़्यादा अमाउंट होता वो किसको दे देता? राजा को दे देता, क्योंकि वो तो राजा का ही था, ठीक है. तब उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम कैसे बना लिया? ये राष्ट्रकूटास जो थे, इंडिपेंडेंट किंगडम कैसे बना लिया? सी, अगर मैं चीफटेन हूँ, मैं इस एरिया का ध्यान रख रही हूँ, ओके, मैं यहाँ के लोगों को ट्रेन कर रही हूँ वॉर के लिए, क्लियर, और यहाँ से जो भी टैक्स मिल रहा है सैलरी रख रही हूँ अपनी, और ज़्यादा का क्या कर रही हूँ? राजा को दे रही हूँ. अब मैंने देखा कि मेरा राजा वॉर में बिजी है, या वो हारने वाला है, या वो हार गया, तो मैं क्या करूँगी? इस एरिया की राजा बन जाऊँगी, इंडिपेंडेंट रूलर बन जाऊँगी, क्लियर. इस तरीके से इंडिपेंडेंट रूलर बना जाता है, क्लियर. तो वही लाइन यहाँ पर रिपीट हुई है. द पोजिशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द डेक्कन. दांती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा. तो कहाँ से इस राष्ट्रकूटास का फाउंडेशन मतलब रूलिंग स्टार्ट हुआ था? जब कौन राजा बना था? दांती दुर्ग, ओके, अंडरलाइन इट. फाउंडर, ओके, फर्स्ट रूलर. It was during his rule the Rashtrakutas rose to prominence after defeating the Chalukyas. कब ये डेवलप हुए, कब ये राजा बने? जब चालुक्यास हार गए. The Rashtrakutas established their capital at Malkhed in the Gulbarga district of Karnataka. They were known to be able administrator and excellent military. ओके, अब इसमें क्या बता रहा है? अगेन आई रिपीट द लाइन. राष्ट्रकूटा इस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट मालखंड. अब ये राष्ट्रकूटा रूलर तो बन गए, अपना कैपिटल किस प्लेस को बनाया उन्होंने? अंडरलाइन इट, मालखेड़, ओके, इन द गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो
कर्नाटका एक पार्ट है, ओके। दे वर नोन टू बी एबल एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए, नोन मतलब नामी एडमिनिस्ट्रेटर थे, ओके, ये सारे। दे वेयर नोन टू बी एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड एक्सटील्ड मिलिट्री, और उनका मिलिट्री भी बहुत पावरफुल था, मतलब उनके लड़ने की जो उनके जो सोल्जर्स थे उनका लड़ने का जो तरीका था वो भी बहुत ही एक्सीलेंस था, बहुत ही अच्छा था, क्लियर। द स्ट्रॉन्ग राष्ट्रकूता आर्मी फॉट द पाला एंड प्रतिहारास। अब ये जो हम राष्ट्रकूतास के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। द स्ट्रॉन्ग राष्ट्रकूतास आर्मी, जो इस राष्ट्रकूता की जो आर्मी थी जो बनी हुई थी, ओके, फॉट किससे लड़ाइयाँ करती थी, पालास जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना, एंड प्रतिहारास, ये दोनों से ये फाइट करते रहते थे, वॉर्स करते रहते थे। द पावर ऑफ ग्रेट राष्ट्रकूता डायनेस्टी डिक्लाइन बाय द 10th century, 10th century तक इनका राज चला, एंड देन इट डिक्लाइन आफ्टर द 10th century, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द 10th century में इनका डिक्लाइनेशन हो गया। क्लियर चिल्ड्रन, हमने ये तीनों के बारे में पढ़ा, क्लियर हुआ चिल्ड्रन, बॉक्स पढ़ोगे अच्छा होगा। राष्ट्रकूता पहले चिल्ड्रेन थे, देन इंडिपेंडेंट रूलर बन गए, इनका मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रांग था, ओके। ये हमेशा पालास और प्रतिहारास से कॉन्फ्लिक्ट रखते थे और इनका डिक्लाइनेशन 10th century में हुआ। क्लियर चिल्ड्रन, अब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।